Okay, so good morning, everyone. So today we are conducting the lecture upon your reference standard. That is a subunit of your paper 4, unit 4, analytical method validation. So reference standard and working standard are the both the terms which we are discussing in today's lecture. We are already discussed the few. Okay. So reference standard, few terms regarding the reference standard we are already studies. We today little bit more discuss regarding the working standard. So there are few slides from this particular PPT which we are already covered. So I go just for the PPT where we are in last session. So here we are in a last session, that is the classification of your reference standard. So everybody know what is exactly the reference standard. There are three types of reference standard. That is your analytical reference standard, that is the primary standard. Second is your working standard and secondary standard, and authenticate material or reference material. So these three terms we are basically already discussed in previous lecture ki what is the difference between each of them, and what are the criteria for that. Okay, in detail we are studying few slides ki exactly analytical standards mein and working standard mein difference kya hota hai, and where we are exactly using this particular standard and this reference material. So these are the basically three classification of your reference standards. So we'll move for the next slide. So what is exactly the analytical reference standard? See, so the material or substance which is well established property and used for calibration of apparatus for assessment of the measurement method and for assessing the value of the material. Please unmute yourself. Sorry, mute yourself. Okay. Have you started the chat writing your name in chat box, because it's considered as your attendance? Please write your name in chat box. Okay. We already started. So mainly we are using analytical reference standards for research and drug development and characteristics of working standard. So what is research and drug development? That means you are preparing कोई new entity synthesize कर रहे हो, जैसे कि for example paracetamol. So paracetamol का API you are actually prepare कर रहे हो and you want to study the purity of your API or study assay for that particular API identification test. तो उस पर्पज के लिए मेजरली वी आर प्रिपेयरिंग द analytical reference standard, which is highly and highly pure form. Characterization of working standard means working standard is little bit less purity as compared to working analytical grade working standard. Sorry, reference standard working standard is not that much pure. तो उसके characterization के लिए या फिर उसके ऐसे performance के लिए we are using the reference standards. So these all the applications we are already studied in previous PPT, which we are already seen. It is WHO PPT. Okay. This is the important slide which also I want to show you from this PPT exactly how we are comparing and where we are using that particular kind of standard. So comparison among the ARS, WSS and AM. So this is a primary standard, or you can say as a gold standard. WS, that is working standard, is a secondary standard, and whatever dilutions or preparation we are preparing, that is nothing but your working standard. Then AM, that is your authenticate material, reference material, which is we are using for daily purpose के लिए जो भी तुम लोग को ऐसे वगैरह परफॉर्म करना है, रूटीन एनालिसिस के लिए जो यूज करते हैं वो होता है तुम लोग का रेफरेंस मटेरियल. ठीक है. So see the purity of your analytical grade reference standard, that is a 99.5%. Sometimes it getting 99. इससे ज्यादा भी होता है 99.7%, 8% भी प्योरिटी होता है बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड्स का. Next, that is your working standard. It is not less than, it's a limit giving ki not less than 99.5%. It's not less than 95%. तो जनरली जो भी वर्किंग स्टैंडर्ड्स अवेलेबल होते हैं उसका प्योरिटी 98%, 99% उसका प्योरिटी होता है. And that is not less than the 80%. That is your reference material. Quality, which is a highly characterized, not so as your ARS, and it is not so as your working standard. Okay. Characterization acceptable without the comparisons. There is no need to specifically analyze or perform the test, or you find anything else.
Working standard, you require the comparison with your one standard number one, that is whenever you are using the working standard, so you have the certificate testing amongst your ARS, that is a उसका जो ऐसे वैल्यू मतलब उसका सपोज जो भी तुम लोग का प्यूरिटी है, सपोज इट इज 98.8%, तो वो प्यूरिटी तुम लोग ने किसी के साथ तो कंपेयर करने के बाद फाइंड आउट किया, तो उसके लिए तुम लोग को ARS लगता है. And for ARS के लिए there is no need to compare their furthermore standard for their characterization and for purity. In the sense जैसे कि suppose मैंने बोला कि विटामिन सी का एक ARS मतलब एनालिटिकल ग्रेड रेफरेंस स्टैंडर्ड है एंड विटामिन सी का वर्किंग स्टैंडर्ड है. तो विटामिन सी का जो ARS ग्रेड स्टैंडर्ड है वो क्या रहेगा, एक्चुअली विटामिन सी सिंथेटिकली प्रिपेयर किया है जिसका केमिकल फॉर्मूला रहेगा, जिसका तुम लोग ने मास स्पेक्ट्रोमेट्री से एनालिसिस कर, मतलब सबसे पहले आइदर यू आर एक्सट्रैक्टेड प्योर फॉर्म फ्रॉम द योर ऑर्गेनिक सोर्स और आइदर यू आर synthetic, your synthesis the specifically based on their chemical structure and formula के हिसाब से you can synthesize the vitamin C, that is your ascorbic acid. After synthesis you are test the particular compound based on their characteristics, जैसे कि FTIR से तुम लोग उसका spectra find out करोगे, then mass spectrometry and other instrumentation से you are just find out कि exactly chemical formula क्या, how much amount of इसका purity and impurity कितने, ये हम लोग उसके particular test करेंगे. But we are not comparing the standard with other kind of मतलब विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड के साथ उसका कंपैरिजन नहीं होगा. जो भी उसके वैल्यूज रहेंगे जैसे कि 99.9% होना चाहिए, तो यू कैन डायरेक्टली चेक अलोंग विद द मेल्टिंग पॉइंट एंड जो अदर बाकी के अपने टेस्ट है वॉट एवर वी आर यूजिंग टू फाइंड आउट द प्यूरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, उसे तुम लोग करोगे. ऐसे परफॉर्म करने के लिए उसका किसी और कंपाउंड के साथ केमिकल रिएक्शंस करते हैं, जैसे कि टाइट्रेशन होता है या फिर कोई केमिकल रिएक्शन होता है इसमें एक कंपाउंड किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट होता है. So if the compound is 100% pure, so it is 100% completely converted into the another compound. जैसे कि सपोज टाइट्रेशन करना है तो विटामिन सी इज नथिंग बट द एसिडिक इन नेचर, तो इमेजिन करो कि उसका NaOH के साथ व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द टाइट्रेशन विद द अलोंग विद द NaOH, तो उसके टाइट्रेशन का वैल्यू आता है कि एग्जैक्टली सपोज उसका तुम लोग ने 1000 ppm का स्टैंडर्ड बनाया है एंड व्हेनेवर यू आर परफॉर्मिंग द एनालिसिस यू गेट द एग्जैक्टली 1000 ppm. याद है हम लोग ने ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल आयन का टाइट्रेशन किया था, ठीक है, द प्रेजेंट द Fe और आयन प्रेजेंट इन यूर FAS सॉल्यूशन के अंदर, उसका हम लोग ने 1000 ppm का स्टॉक बनाया था एंड देन 1000 ppm का मतलब वी आर प्रिपेयरिंग स्टैंडर्ड एज वेल एज सैंपल. तो 1000 ppm का सबसे पहले हम लोग ने स्टॉक बनाया था एंड जब तुम लोग टाइट्रेशन करके बैक कैलकुलेट करते हो तो कैलकुलेट करने के बाद तुम लोग को 1000 ppm का ही सैंपल में मतलब स्टैंडर्ड में उसका रीडिंग आता है एंड देन कंपेयर करने के बाद हम लोग उसका परसेंटेज प्यूरिटी निकालते थे एंड बेस्ड ऑन दैट जो भस्म सैंपल है उसके अंदर जो भी तुम लोग का आयन है उसका हम लोग ने फाइंड आउट किया था कि एग्जैक्टली हाउ मच अमाउंट ऑफ आयन प्रेजेंट इन भस्म. I hope you are prepared this done this practical in first year, right? Or this practical is not yet performer, it is for second year. I don't remember it is for first year or second year. Have you performed this particular practical for Bhasma? Titration for that is the ion estimation of Bhasma sample from the titration and ASA. Have you done this particular practical? No, ma'am. Okay, so it may be this practical for this in this semester. So वो practical में हम लोग को क्या होता है, whatever that means the standards होते हैं उसका भी हम लोग comparison करके first of all value find out करते हैं and then we will find out it how much amount of ion present in your Bhasma sample. तो जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं मतलब AR ग्रेड के स्टैंडर्ड होते हैं उसके कंपैरिजन के लिए तुम लोग को कोई और क्राइटेरिया करने की जरूरत नहीं होती. उसके जो प्यूरिटी के लिए पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं बेस्ड ऑन दैट टेस्ट यू आर फाइंड आउट द प्यूरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड. ठीक है, वर्किंग स्टैंडर्ड डेफिनेटली वी नीड टू कंपेयर विथ योर ARS सैंपल, दैट इज योर प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ फाइंड आउट कंपेयर करके वी आर फाइंड आउट द पर्टिकुलर ऐसे की विटामिन सी का ARS के उसका 99.98% उसका प्यूरिटी है. तो बेस्ड ऑन दैट तुम्हारे सैंपल का जो भी एब्जॉर्बेंस है तो उसके हिसाब से उसका प्यूरिटी कितना रहेगा. ठीक है, सो उसका एरिया अंडर कर्व वगैरह करके हम लोग क्रॉस कैलकुलेशन से करते हैं. दैट वे वी आर फाइंड आउट द ऐसे और प्यूरिटी ऑफ योर वर्किंग स्टैंडर्ड. सेम फॉर योर रेफरेंस मटेरियल के लिए भी हम लोग सेम करते हैं. वी आर कंपेयर आइदर विद द ARS और अदर विद द वर्किंग स्टैंडर्ड. ठीक है, सो this is the characterization purpose, most probably where we are using this particular kind of standards. So ARS most probably used for industrial purpose, that is a drug development process. Most probably they are using in R&D centers
कैलिब्रेशन ऑफ apparatus, बिकॉज सारा जो भी तुम लोग का एनालिसिस होने वाला है इंस्ट्रूमेंटेशन का, वो इंस्ट्रूमेंट के क्या बोलते हैं सिस्टम सुटेबिलिटी के ऊपर या फिर उसका एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के ऊपर होने वाला है. तो ये पर्टिकुलर टेस्ट के लिए स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्यूरी हाईली प्योर स्टैंडर्ड्स वी आर यूजिंग, दैट टाइम वी आर यूजिंग ARS स्टैंडर्ड. देन कैलिब्रेशन फॉर द सेकेंड स्टैंडर्ड, मतलब जो तुम लोग के वर्किंग स्टैंडर्ड्स है वो वर्किंग स्टैंडर्ड का कैलिब्रेशन करने के लिए, और जो वर्किंग स्टैंडर्ड्स है उसका ऐसे परफॉर्म करने के लिए वी आर यूजिंग द ARS स्टैंडर्ड. ठीक है. Working standard most probably used for QC laboratory work purpose and quality control analysis. दैट मीन्स जो कुछ भी तुम लोग का एनालिसिस होते हैं, जैसे कि सपोज विटामिन सी का तुम लोग को ऐसे फाइंड आउट करना है, विटामिन सी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एप्पल जूस, लेमन जूस, तो उसके कंपैरिजन के लिए तुम लोग को स्टैंडर्ड लगने वाला है. दैट टाइम जो स्टैंडर्ड तुम लोग यूज करते हो वो वर्किंग स्टैंडर्ड्स होते हैं. ठीक है. सो वो जो भी तुम लोग 1000 एंड 100 ppm सॉल्यूशंस बनाते हो वो वर्किंग स्टैंडर्ड से बनाते हो. AM, that is a visual as usual image to compare the certain testing and articles to meet the requirement. जैसे कि सिंपल है, तुम लोग को टाइट्रेशन करना है या फिर किसी भी चीज का कंपैरिजन करना है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए कंपैरिजन करने के लिए यू वांट सम पर्टिकुलर केमिकल, दैट टाइम यू आर यूजिंग योर AM, दैट इज अ रेफरेंस मटेरियल, जिसको रेफर करके तुम लोग बाकी की चीजें करते हो. जैसे कि तुम लोग के सारे जो AR ग्रेड के जो केमिकल्स होते हैं they can call as a reference material or authenticate visual material. ठीक है. नेक्स्ट, नॉट यूज, कहाँ पे यूज नहीं होता, एज ड्रग और कॉस्मेटिक फॉर कंजप्शन. ठीक है. इट इज नेवर यूज फॉर एनी काइंड ऑफ, जैसे कि मैंने बोला कि पैरासिटामोल एकदम हाईली प्योर है, तो इंस्टेड ऑफ टैबलेट में पैरासिटामोल का API से अच्छा हम लोग ARS ही डाल दें. सो नो, बिकॉज दे आर वेरी कॉस्टली एंड वेरी ऑथेंटिक, क्या बोलते हैं, प्योर फॉर्म में होते. इट इज नॉट फॉर कंज्यूमेबल फॉर्मेट, इट मे हार्म फॉर योर बॉडी because of highly purified chemical synthesis. Maximally they are prepared by the chemical synthesis method. Okay, next, working standard for research purpose के लिए we are using and sorry, AM, that is not for a chemical analysis. ठीक है. So it is just used for reference purposes, not used for the chemical analysis. Availability, synthesized independently and available in very less quantity, and definitely they are very costly. Working standard, that is a procedure for bulk manufacture and or prepare in a laboratory itself. Next, that is AM is available in a small quantity. Okay. Cost, it is a very expensive. Next, it is a low cost and definitely it is also low cost. So generally जो भी laboratory के लिए हम लोग standards use करते हैं, जैसे कि अपने पास DFS का bottle है, पता है 100 mg का, caffeine का bottle है 100 mg का. These are nothing but your working standard. ठीक है. It is not your AR grade standard. इसलिए जब भी तुम लोग कभी समटाइम जब तुम लोग रीडिंग्स लेते हो तो तुम लोग को कभी कभी एग्जैक्टली करेक्ट रीडिंग्स नहीं आता है. जैसे कि पैरासिटामोल का लैम्बडा मैक्स है 281. सो आइडियली वर्किंग स्टैंडर्ड का लैम्बडा मैक्स भी कंपेयर अगर करें तो 281 ही आना चाहिए, बट समटाइम्स वी गेट 278 और 282 वगैरह ऐसा मिलता है, बिकॉज इट इज नॉट 100% प्योर. तो उसके हिसाब से वो थोड़ा बहुत चेंज होता है. बट सपोज तुम लोग ने कभी ARS ग्रेड का किसी भी कंपाउंड के लैम्बडा मैक्स या फिर उसका एब्जॉर्बेंस या फिर उसका देखा, तो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आता है जहाँ पे उसका दिया होता है, बिकॉज दे आर हाईली प्योर फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड वेरी प्योर फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है. ठीक है. नेक्स्ट मुझे बताना था कि एक्सपेंसिव के लिए देखा जाए तो कॉस्ट अगर देखा जाए तो मोस्ट प्रोबेबली वर्किंग स्टैंडर्ड आर वेरी कॉस्टली. एग्जांपल देना है तो इट मे बी कम लाइक hardly 10 mg or 100 mg standard or for 60,000 rupees वगैरह, it is a cost, but that particular standard की वो हार्डली मिलीग्राम्स में ही आते हैं. और जस्ट होल्ड फॉर 1 सेकेंड, द PC का बैटरी इज लो, आई जस्ट कनेक्ट द बैटरी. Okay.
सो ऐसे उसका कॉस्ट हो कि 100 mg 10 mg हार्डली गेटिंग 15,000 16,000 10 mg 10 mg फॉर 50,000 16,000 20,000 उससे उसका कॉस्ट होता है. सो इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव. वर्किंग स्टैंडर्ड जो होते हैं वो इतने कॉस्टली नहीं होते. डेफिनेटली दे आर ऑल्सो कॉस्टली बट दे आर नॉट दैट मच कॉस्टली एज लाइक यूर AR का जो कॉस्ट होता है बिकॉज इट इज नॉट दैट मच प्योर. सो मोस्टली रूटीनली जब तुम लोग को लेबोरेटरी के लिए जो भी किसी क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस के लिए जब स्टैंडर्ड करना होता है दैट टाइम मोस्ट प्रोबेबली वी आर यूजिंग द वर्किंग स्टैंडर्ड्स. जैसे कि तुम लोग का ऐसे है API का वगैरह ऐसे करना होता है या फिर कोई फिनिश प्रोडक्ट का टेस्टिंग करना होता है. So that time you are using the working standard. Please mute to all of you. Shraddha, you have any doubt, bacha? Because you just unmuted. Just raise your hand so I can say the unmute for yourself because otherwise it is a noise is coming. Okay. So here we see the comparison and now we will move for the next slide. Sorry, the slide is not moving. टाइप्स ऑफ रेफरेंस स्टैंडर्ड्स. ठीक है, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं जो रेफरेंस स्टैंडर्ड मतलब AR ग्रेड के जो तुम लोग के रेफरेंस स्टैंडर्ड्स है उसके जो डिफरेंट टाइप्स है. ठीक है, दे आर डिवाइडेड इन द 3 कैटेगरी. जो AR ग्रेड रेफरेंस स्टैंडर्ड है प्योर हाईली प्योर फॉर्म में उसके 3 कैटेगरीज आते हैं. सो व्हाट आर दीस 3 कैटेगरीज ऑफ दिस रेफरेंस स्टैंडर्ड? First is your reference solution, next is your related system, next is your system suitability. So we will see the exactly where we are using these all 3 kind of standards. Reference solution is nothing but the pure form of reference standards which we are using an assay and R&D centers for purity of the compound synthesis of जिसके लिए यूज होता है वो रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है. मैक्सिममली जो रेफरेंस स्टैंडर्ड होते हैं जैसे मैंने बोला कि दे आर कमिंग विद द लोवेस्ट क्वांटिटी. सो वो वन टाइम यूज के लिए होता है. समटाइम्स उसका शेल्फ लाइफ ज्यादा होता है तो यू कैन यूज 3 to 4 टाइम्स ऑल्सो और यू कैन स्टोर इट इन अ प्रॉपर कंडीशन. और बहुत कम सैंपल ऐसे होते हैं कि इट इज वन टाइम यूज के लिए आता है कि तुम लोग उसको डाइल्यूट करके देन यू कैन स्टोर द सैंपल इन अ फ्रीजर. So compound which are difficult to handle like very hydroscopic or moisture sensitive, a stable solution of drug substance can be manufactured or filled into the tight glass ampoules and for once use only with the detail of storage condition and shelf life are given. दैट मीन्स वॉट जैसे कि वो मैंने बोला कि दे आर वेरी हाइड्रोस्कोपिक एंड वो लाइट सेंसिटिव वगैरह मॉइस्चर सेंसिटिव रहते हैं. जैसे कि विटामिन सी ले लो. ठीक है, दे आर वेरी लाइट सेंसिटिव एंड मॉइस्चर सेंसिटिव होता है. सो वंस अपॉन यू ओपन द वायल ना you just fill along with the मतलब you have to prepare the particular dilution that particular solution and then store that particular compound. जैसे कि यहाँ पे तुम लोग के इंजेक्शन के ऑयल देख ले या फिर अभी नेक्स्ट ईयर में जब भी तुम लोग प्रैक्टिकल करोगे that time you have the penicillin वगैरह ऐसे जिसमें जो standards आते हैं they are very hydroscopic. So you have to fill that particular solution along with the sample. जैसे तुम लोग के कोई एंटीबायोटिक्स के बच्चों के लिए जो क्या बोलते हैं एंटीबायोटिक्स आते हैं. ठीक है, वो ड्राई पाउडर फॉर्म में होते हैं. सो वी विल एडेड सम स्टेराइल वाटर एट पर्टिकुलर क्वांटिटी देन एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में उसका सॉल्यूशन बनता है. तो वैसे ही उसके वायल के ऊपर लिखा होता है कि 10 mg सॉल्यूशन है तो एक्जैक्टली यू हैव ऐड द 10 ml ऑफ प्योर डिस्टिल्ड वाटर. समटाइम्स दे आर प्रोवाइडिंग द प्रॉपर डिस्टिल्ड वाटर दैट इज डबल डिस्टिल्ड वाटर और deionized water they are providing for preparation of dilutions. then you prepare that particular dilutions and उसके बाद जो तुम लोग का solution होता है that is your stock solution which you can store for 1 year 2 year. उसके ऊपर उसका validity और shelf life period लिखा होता है कि you can use up till the 1 year this particular solution and you can use it till 3 year this particular solution और 6 month के लिए. It's depend upon वो particular compound का stability कितना है based on that उसका shelf life period decide होता है and that diluted solution you can store and use whenever you are required. मतलब 1000 ppm का स्टॉक तुम लोग उसके अंदर बना के रखोगे. whenever you are required for analysis purpose के लिए तुम लोग को कंपनी में यूज होना है that time you want to prepare the 10 ppm और 100 ppm solution. उस 1000 ppm से फिर तुम लोग 1 ml 0.5 ml लेके फिर उसका further dilutions करके you can use that particular working standard that is prepared from the reference standard. से जो तुम लोग ने working standard prepare किया है वो तुम लोग यूज कर सकते हो. लेकिन अभी उसका जो सेकेंडरी और टर्शरी डायल्यूशन तुम लोग बनाते हो यू कैन नॉट स्टोर दैट पर्टिकुलर डायल्यूशन मोर देन 1 वीक और उसका भी उनको सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस में मेंशन किया होता है कि टर्शरी और सेकेंडरी डायल्यूशन है उसका वैलिडिटी कितना है. यू कैन यूज 1 टाइम
और यू कैन यूज अप टिल 1 मंथ, यू कैन यूज अप टिल 1 वीक, ये भी उसके अंदर मेंशन होता है। एंड स्टॉक सॉल्यूशन का गारंटी भी उसके ऊपर दिया होता है। Some compound are not hydroscopic and stable in dry condition also. That time उसका 100 mg है तो that time you can prepare, जैसे कि 10 mg लेके 10 ml में डिजोल्व किया एंड उसका स्टॉक सॉल्यूशंस बनाया है, एंड बाकी का तुम लोग डेसिकेटर के अंदर या फिर क्लोज कंटेनर में जहाँ पे वो स्टेबल रहेगा वहाँ पे तुम लोग उसको स्टोर कर सकते हो। तो ऐसे दो काइंड के रेफरेंस स्टैंडर्ड्स आते हैं, एक होता है जो वन टाइम यूज के लिए होता है, एक होता है जिसको अगर वो प्रॉपर सेंसिटिविटी नहीं रहेगा उसका, दैट यू कैन स्टोर इट इन अ डिफरेंट कंडीशन। ठीक है। नेक्स्ट जो रेफरेंस स्टैंडर्ड्स आता है, दैट इज नथिंग बट द रिलेटेड सब्सटेंस which most probably we are using the impurity profiling के लिए. So you all of you know what is exactly impurity profile, so I am not going in detail कि how exactly we are going for impurity detail, because impurity profile I have already explained in your first PPT. ठीक है। So relative substance which include the related impurities and byproduct degradation product and used to prove the system suitability, qualitative and quantitative analysis के लिए use होता है। Next, that is your system suitability. What is exactly system suitability standard? So these are the specific type of standard used to test your instrument. जैसे मैंने बोला था instrument qualification के लिए हम लोग कुछ standards use करते हैं, that standard is nothing but the system suitability standards. So it is a mixture of compound with the small amount of impurity is required, or mixture of the impurities or mixture of impurities and related compound as a reference standard. So SST, that is the system suitability test, is based on the adjustment of the RT and RTN resolutions. तो exactly system suitability में क्या होता है? ठीक है, इससे में भी दो तीन टाइप के अलग अलग टाइप के स्टैंडर्ड्स होते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड जो होता है जिसके अंदर तुम लोग का रेफरेंस मटेरियल मतलब रेफरेंस स्टैंडर्ड अलोंग विद द इम्प्योरिटीज होता है। जैसे कि इमेजिन करो रेफरेंस मटेरियल एंड इम्प्योरिटी के लिए, जैसे कि विटामिन सी है तो विटामिन सी के साथ ए बी सी आर, थ्रीज आर द थ्री इम्प्योरिटीज। तो जो उसका स्टैंडर्ड रहेगा वो यूनिफॉर्म मिक्सचर रहेगा, जैसे कि उसके अंदर 99 मिलीग्राम, जैसे कि सपोज परसेंटेज वाइज है तो 100% के अंदर 99% विटामिन सी रहेगा। उसके बाद 0.5% तुम लोग का इम्प्योरिटी ए, 0.5 इम्प्योरिटी बी, 0.5 इम्प्योरिटी सी एंड 0.5 इम्प्योरिटी डी। तो जब तुम लोग सैंपल रन करोगे तो अलोंग विद द स्टैंडर्ड उसके इम्प्योरिटी भी रन होगी, तो टोटल तुम लोग को 4 पिक मिलेंगे। फर्स्ट तुम लोग के स्टैंडर्ड का पिक एंड 3 इम्प्योरिटी के पिक, जिसका कंपैरिजन के लिए तुम लोग यूज कर सकते हो। ये कहाँ पे यूज होता है? सिस्टम, जैसे कि तुम लोग का सिस्टम का कोई पार्ट तुम लोग को चेक करना है, दैट टाइम ऐसे आते हैं। नेक्स्ट जिसके अंदर ओनली 3 इम्प्योर मतलब ओनली इम्प्योरिटीज रहते हैं, जैसे तुम लोग को याद है वो था कि देयर आर यू आर ऑब्जर्विंग द 4 पीक, उसमें से एक पीक बहुत बड़ा रहेगा, 3 पीक छोटे रहेंगे, थर्ड पीक का इतना इतना रिटेंशन टाइम रहेगा। so that is nothing but your major reference standard and other 3 impurities where we are checking the resolution between these particular compound कि तुम्हारा पर्टिकुलर सिस्टम ये इंस्ट्रूमेंट जो है दिस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए तुम लोग ने बनाया हुआ है, तो सच में वो उसके लिए क्वालिफाइड है या नहीं। नेक्स्ट आता है कि एग्जैक्टली तुम लोग के इंस्ट्रूमेंट का सेंसिटिविटी कितना है, वो चेक करने के लिए आता है। सो वी आर पर्पसली एडेड द इम्प्योरिटी। So suppose we are adding the impurity that is compound which is very very related to your compound. So ideally we are expected है कि तुम लोग को resolutions वाले peak मिलने चाहिए। जैसे कि suppose if you see this particular diagram, so imagine करो this is your original reference standard and these two impurity we are purposely added to check the system suitability or we check the accuracy of the instrument. सो सपोज हम लोग ने उसके अंदर 2 इम्प्योरिटी डाली है, उसमें से एक इम्प्योरिटी है विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू योर कंपाउंड एंड दूसरा जो है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट है। तो जब तुम लोग रन करोगे सो एक्सपेक्टेड है कि तुम लोग को 3 पिक मिलने चाहिए। व्हाई? बिकॉज 1 इज योर रेफरेंस स्टैंडर्ड एंड 2 इज इम्प्योरिटी वी आर पर्पसली एडिंग विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू योर कंपाउंड। तो सपोज योर इंस्ट्रूमेंट इतना सेंसिटिव नहीं रहेगा, तो जो नियर अबाउट इम्प्योरिटी होते हैं ना उसका तुम लोग को सिंगल एक पिक या मर्ज पीक दिखता है। तो सपोज मर्ज पीक एंड सिंगल पीक दिख रहा है, दैट मीन्स योर सिस्टम इज नॉट सुटेबल फॉर एनालिसिस ऑफ सच काइंड ऑफ सैंपल्स। so definitely you need to find out or you need to develop this particular method or need to increase the sensitivity of your detector or separation purpose column दूसरा कुछ अलग यूज करना है ताकि you can get the different type of resolutions. so such type of testing के लिए मतलब इंस्ट्रूमेंट के टेस्टिंग के लिए जो हम लोग स्टैंडर्ड्स यूज करते हैं
वो होते हैं सिस्टम सुटेबिलिटी स्टैंडर्ड। जैसे कि ये स्लाइड में हम लोग ने उसका एग्जांपल देखा था ना कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स वी आर यूजिंग फॉर इंस्ट्रूमेंट पर्पस के लिए, कैलिब्रेशन पर्पस के लिए। जैसे कि ये भी है टाइटर वाला, किधर गया हो, पोटेशियम सॉरी कार्ल फिशर डाइसोडियम टाइट्रेट। तो इसका एक, जब तुम लोग इसे टाइट्रेशन करते हो, कार्ल फिशर इज नथिंग बट द टाइट्रेशन यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले तुम लोग टाइट्रेशन के लिए तुम्हारे सैंपल से पहले डाइसोडियम टाइट्रेट से टाइट्रेशन करते हो, दैट इज योर कैलिब्रेट योर इंस्ट्रूमेंट। उसका एक स्पेसिफिक प्यूरिटी का वैल्यू होता है कि वो वैल्यू अगर आता है देन ओनली यू कैन कंटिन्यू योर टाइट्रेशन अलोंग विद अदर सैंपल। समटाइम्स ये वैल्यू नहीं आता है, दैट मीन्स व्हाट, कहीं ना कहीं पे तो तुम्हारे सिस्टम में मॉइस्चर, मतलब जो उसका इक्विपमेंट है, आइदर मिथेनॉल इज मॉइस्चराइज हो चुका है, जो बीकर तुम लोग ने टाइट्रेशन के लिए यूज किए वो प्रॉपरली ड्राई और क्लीन नहीं थे, उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट था, या फिर ऐसे कहीं ना कहीं पे से तुम लोग का सैंपल वो एकदम क्लोज कंटेनर होता है। सो सपोज कहीं ना कहीं से तो कंटेनर लीक हो रहा है, वहां से एयर तुम्हारे सॉल्यूशन में इंटरफेयर करे, दैट मीन्स यू नीड टू अगेन clean and wash and dry your all the equipment, and then again do the dititrate sodium wala titration. If you get the accurate reading then only you can further do for the titration के लिए यूज कर सकते हो। सेम वे जैसे कि अपना बैलेंस होता है, बैलेंस के लिए सपोज तुम लोग बैलेंस ही यूज करते हो, मतलब उसके वेट्स होते हैं, उसके लिए कोई स्टैंडर्ड यूज नहीं होता है। सो फॉरगेट अबाउट द बैलेंस। सो दीज आर द सम काइंड ऑफ क्या बोलते हैं सिस्टम सुटेबिलिटी वाले स्टैंडर्ड, जो स्पेसिफिकली इंस्ट्रूमेंट के कैलिब्रेशन के लिए एंड इंस्ट्रूमेंट के मतलब सेंसिटिविटी एंड एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन टेस्टिंग के लिए यूज होते हैं। सो दीज आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स which come into the reference standard. So do you understand this particular slide? We will be for the next, that is the classification according to the ISO and USP, that is a certified reference standard and reference material. Certified reference standard come along with the certificate of analysis. Working standard is come also come with the along with the actually with the एक उसका डाटा आता है कि एग्जैक्टली उसके ऊपर क्या क्या मटेरियल है, लेकिन देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस एंड रेफरेंस मटेरियल। सो ये ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा है व्हाट इज एग्जैक्टली रेफरेंस स्टैंडर्ड एंड रेफरेंस मटेरियल, सो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल वंस अगेन फॉर दैट बिकॉज यू आर वेरी वेल नोन दिस। वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। Okay. So next slide is thank you. So here we will, so definitely we can read this particular slide. So the reference material holds properly value are certified by the technically valid procedure accomplished by the traceable and the certificate or other documentation which is issued by the certified body. Okay. It is a working level reference material used to calibration as the apparatus and assessment of the measurement method and for the assigning the value of the material. वही कि उसका कंपैरिजन रेफरेंस स्टैंडर्ड से करके तुम लोग का उसका एनालिसिस मिलता है, एंड सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस में डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट करके तुम लोग उसका सर्टिफिकेशन करते हो, सो दैट इज योर सर्टिफाइड। द नेक्स्ट टॉपिक जो तुम्हारे सिलेबस का है वही है, दैट इज योर सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, वो हम लोग इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो हियर वी आर कंप्लीटेड व्हाट इज एग्जैक्टली योर रेफरेंस स्टैंडर्ड, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं एंड वेयर वी आर यूजिंग योर रेफरेंस स्टैंडर्ड। ठीक है, I little bit want to elaborate on what is where we are exactly using the working standards. सो मेजरली जो लेबोरेटरी पे डेली बेसिस पे यूज होते हैं वो तुम लोग के वर्किंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसका भी सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस आता है, लेकिन वो सर्टिफिकेट कंपैरिजन विथ योर एनालिटिकल ग्रेड स्टैंडर्ड के साथ आता है। एंड सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस का जो ARS का सर्टिफिकेट होता है उसके अंदर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्यूरिटी चेक करने के लिए टेस्ट करके उसका सर्टिफिकेट बनाते हैं। विदाउट सर्टिफिकेट तुम लोग के जो कुछ भी स्टैंडर्ड्स है आर फेल टू यूज। ठीक है, हर एक मतलब वेन एवर यू आर यूजिंग ऐसे फॉर पर्टिकुलर कंपाउंड, जैसे कि सपोज मेरे पास किसी कंपनी का विटामिन सी का ऐसे करना है, सो वो डेफिनेटली दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द स्टैंडर्ड। सपोज दे आर प्रोवाइडिंग द स्टैंडर्ड, दे शुड प्रोवाइड द स्टैंडर्ड अलोंग विद द सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, मतलब उस स्टैंडर्ड के साथ उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। सपोज वी आर यूजिंग योर ओन स्टैंडर्ड्स, देन डेफिनेटली तुम लोग के पास जो भी स्टैंडर्ड उनके सैंपल के लिए तुम लोग एनालिसिस के लिए स्टैंडर्ड यूज करो, उसका सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस का कॉपी तुम लोग को अलोंग विथ योर रिजल्ट या फिर फॉर्म नंबर 39 के साथ सबमिट करना होता है। फॉर्म नंबर 39 इज नथिंग बट द वन फॉर्मेट इन विच यू आर राइट योर रिपोर्ट विच इज प्रोवाइडेड बाय द FDA, दैट इज शेड्यूल ए के अंदर ये फॉर्मेट दिया हुआ है FDA का।
कि हाउ यू आर सपोज टू राइट द योर रिपोर्ट. मैंने तुम लोग को लास्ट टाइम भी सिखाया था, जैसे कि एग्जाम में तुम लोग को रिपोर्ट लिखना है तो फॉर्म 39 फॉर्मेट में लिखना है. सो वेन एवर यू आर यूजिंग एनी स्टैंडर्ड्स, so you have to give the all the details along with the certificate of analysis with that particular standard. So that is nothing but your working. ठीक है. हाँ, अभी जो वर्किंग स्टैंडर्ड, ये टर्म को भी मैक्सिमम कंपनी में वर्किंग स्टैंडर्ड ऐसे टर्म यूज करते हैं. जैसे कि जो भी तुम लोग का सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस से तुम लोग डाइल्यूशंस बनाते हो, जैसे मैंने बोला कि 1000 ppm का स्टॉक बनाए, उसे अभी तुम लोग प्रिपरेशन के लिए 100 ppm का स्टॉक प्रिपेयर करते हो. So sometimes in company that particular standard is also called as a working standard. That is your secondary standard which you are prepared from the primary standards. ठीक है. That samples के लिए भी या फिर that standard के लिए भी sometimes you are use the particular term that is called as a working standard. ठीक है. या फिर secondary standard you can call. मतलब जो stock solution से further, जैसे कि तुम लोग 100 ppm का stock बनाते हो, उसके बाद तुम लोग 1000 का stock बनाते हो, उसके बाद जो 100 10 वगैरह मतलब प्राइमरी टर्शरी और जो तुम लोग डाइल्यूशंस बनाते हो, दैट डाइल्यूशन इज आल्सो रिफर एज योर वर्किंग स्टैंडर्ड, बिकॉज उसके साथ कंपेयर करके तुम लोग तुम्हारे सैंपल का एनालिसिस करते हो. जैसे कि 100 ppm का तुम लोग ने स्टैंडर्ड प्रिपेयर किया फ्रॉम योर 1000 ppm के स्टॉक सॉल्यूशन से, एंड दैट स्टॉक वी आर यूजिंग फॉर कंपैरिजन फॉर DFS प्रेजेंट इन योर टैबलेट. सो दैट 100 ppm is called, can be called as a consider as your working standard. So here I will stop, and I have completed your topic, that is your reference standard and working standard. So only less than 1 minute is left, so we will complete this particular topic in this particular period. So anybody is having any doubt, you can raise your hand. We will continue the discussion on your doubt session on your afternoon session. So do you have any doubt with respect to the standards and reference material? Just write in chat box. No, ma'am. Okay, okay. So thank you so much. Definitely, we will meet on the afternoon lecture for discussion of topic, that is what is exactly the certificate of analysis, how the certificate made, what are the tests, and उसका format क्या होता है, ये सारी